very warm welcome to Thorough Newspaper Analysis. Today is 21st of April and this video series is brought to you by LawSeco. Now, as far as the agenda for today is concerned, at the very outset, we're going to have an understanding of an editorial, the title of which is Caring for the Strays. This is going to be followed by our news segment, जहाँ पर हम कुछ important national and international news updates की discussion करेंगे. This is relevant for those of your exams, जहाँ पर current affairs is a part of your syllabus. And lastly, हमारे पास जो segment है, it is called legal news update. यहाँ पर हम कुछ important legal developments for the day उसको discuss करते हैं. For today, we have an update coming from the Honorable Supreme Court. And secondly, it is there's an update from the Honorable High Court of Punjab of Jammu and Kashmir. I'm sorry. So with this, let's dive into the TNA. So the title for today's editorial is Caring for the Strays. This is going to be our order of understanding of it. तो देखिए पहले तो हम कुछ ऐसे recent case laws की बात करेंगे, be it a decision of the Honorable Supreme Court or that of various high courts, including the High Court of Bombay, Delhi High Court, Allahabad High Court and the High Court of Punjab and Haryana, जहाँ पर stray dogs इस पूरे issue पर कोई ना कोई observation या कोई ना कोई guidelines lay down करी गई है. This is going to be followed by an understanding of what are the legal provisions, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, आईपीसी में हो या फिर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉज इन प्लेस है हमारी कंट्री में जो डील करते हैं, एड्रेस करते हैं इस पूरी प्रॉब्लम को, विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड इट्स राइट वर्सेस द राइट्स ऑफ एनिमल वर्सेस द इंडिविजुअल्स राइट और ह्यूमन्स राइट. Now, thirdly, we are going to have an understanding of the recently notified animal birth control rules and what are its important provisions. वो हम देखेंगे. There is a very specific rule which is Rule 20 which is with respect to feeding stray dogs. तो वो काफ़ी relevant हो जाता है आज के context पे, उसकी भी हम बात करेंगे. And fourthly, हम इस editorial discussion article पे आएंगे जहाँ पे we're going to have an understanding of what कुछ ऐसे data की बात करेंगे हम जो इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को हाईलाइट करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वर द इश्यूज इन द previous rule, which is the rule of 2001, and what are the challenges in the 2023 rule and how can we address or tackle the same. So let's start with the case laws first. So see, last year Supreme Court stayed Bombay High Court's observation that people who feed street dogs, they must adopt them, and the court asked dog feeders not to create public nuisance. तो एसेंशियली हुआ क्या था, लास्ट ईयर अक्टूबर के अराउंड बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें हाई कोर्ट ने बहुत ही एकदम एक्सट्रीम या कैटेगोरिकली रिमार्क्स दी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो लोग जिनको डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना है, they should, the so-called friends of stray dogs, if they are really interested in protecting and welfare of these animals, then they must adopt the stray dogs. उन्होंने कहा कि आप अगर इतनी ही if you are interested in the protection or welfare, तो you adopt these dogs, तुम ही उनको registration करवाओ, you are going to be responsible for the maintenance, health and vaccination, and you feed the dogs within your own homes and premises. तो ये क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम रिमार्क्स थे तो द मैटर वेंट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम मेजर के तौर पे इस ऑब्जर्वेशन को स्टे किया एक तो, एंड सेकेंडली इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस एंड टू सी द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कोर्ट ने ना कुछ ऑब्जर्वेशंस करी या कुछ इंटरिम डायरेक्शन दी. तो फर्स्ट तो इट स्टेटेड कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इट इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेडिकेटिंग सर्टन स्पॉट्स जहाँ पे कि आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हो. तो कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी लोकेलिटी है जैसे उसमें एक पर्टिकुलर स्पॉट को डेजिग्नेट कर दो एंड जितने भी जो डॉग फीडर्स हैं या केयर गिवर्स हैं वो वहाँ जाके सर्टन टाइम लिमिट्स जो भी है वहाँ पर उनको फीड कर सकते हैं. सेकेंडली उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसे न्यूसेंस के केसेस सामने आते हैं जहाँ पे कि कोई डॉग है लेट्स से वो बहुत ही फेरोशियस या एग्रेसिव है जिससे कि किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्टेप्स लेने की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में. थर्डली जनरल पब्लिक के रिस्पेक्ट में कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है यू वांट टू फीड द स्ट्रीट डॉग्स बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि न्यूसेंस ना क्रिएट हो सोसाइटी में. And also then the court stated that in the meanwhile अगर municipal corporation को लगता है that there is a certain somebody who is creating nuisance, public nuisance हो रही है, किसी की life को endanger हो रहा है, तो you take down details, you're free to do so, but ऐसे coercive steps नहीं ले सकते आप, जैसे कि एक बहुत ही high huge amount या otherwise also fine आप impose कर दिया जैसे हाई कोर्ट ने कहा था, वैसा that is not permissible. So this was the interim measure that were proposed by the Honorable Apex Court. सेकेंडली हमारे पास एक दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है जो कि 2021 का जजमेंट है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्योंकि इसमें कुछ बहुत सी की गाइडलाइंस हाईलाइट करी थी. हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने बीच में स्टे कर दिया था बट रिसेंटली वो स्टे जो है वो अपलिफ्ट हो गया या वेकेट हो गया.
तो इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, एक तो कि जैसे ह्यूमंस के पास राइट टू हैव हेल्दी एक्सेस टू हेल्दी एंड क्लीन एटमोसफेयर होता है, और ऑल्सो हमारे पास वी हैव अ राइट टू गेट आवर सेल्फ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी इंजरी विच मे बी इन्फ्लिक्टेड ऑन आवर बॉडी, तो सिमिलरली एनिमल्स के पास भी राइट है टू हैव एक्सेस टू हेल्दी एंड क्लीन एटमोसफेयर and also right to get protection from activities of human beings which may injure them or cause them pain. Secondly, court ने very importantly it held that community dogs वो होते हैं जिनके कोई owners नहीं होते या फिर जो मतलब without any domesticated नहीं होते हैं, तो community dogs have a right to food, एंड क्योंकि दे हैव अ राइट टू फूड तो ऑफकोर्स उनको कोई फीड करने के लिए भी चाहिए होता है, तो सिटीजन्स हैव अ राइट टू फीड देम दीज डॉग्स। बट ये जो राइट है ना, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा विद ड्यूटी ऑल्सो। तो सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि इस प्रोसेस में किसी को हैरेसमेंट नहीं हो रही हो, किसी को हार्म या इंजरी नहीं हो रही हो। थर्डली, उन्होंने कहा कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर कोई केयर गिवर सामने नहीं आ रहा है तो जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको फीड करना, उनको पानी पिलाना, ये सारा काम आपका होगा। एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्पेसिफिकली बोला है दैट यू गेट द डॉग्स रजिस्टर्ड, वैक्सीनेटेड एंड स्टरलाइज्ड, दैट हैज़ टू बी योर एरिया ऑफ वर्क। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला है कि जो कम्युनिटी रेजिडेंट्स होते हैं जिनके पास डॉग्स हैं, उनको एनुअली रैबीज का चेकअप करवाना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो कोर्ट ने ये कहा है कि नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट अनदर पर्सन फ्रॉम फीडिंग अ डॉग अनलेस एंड अनटिल कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे, इन द सेंस कि आपको हैरेसमेंट हो रही है, इफ़ योर लाइफ इज एंडेंजर्ड या फिर इस सॉर्ट का कोई प्रॉब्लम है, देन दैट्स फाइन, बट अदरवाइज इट कैन नॉट बी डन। नाउ द थर्ड अपडेट इज फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नो प्रोविजन ऑब्लाइजेस civic body to kill innocent animals. This was said by the High Court while dismissing a plea for killing of birds, dogs and creating nuisance. फोर्थली हमारे पास अपडेट है फ्रॉम दी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो देखिए क्या हुआ था कि गुड़गांव के कंज्यूमर फोरम ने एक ऑर्डर निकाला, ये काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर था जिसमें काफ़ी डेटा भी साइट करा गया था अबाउट द मेनेस ऑफ डॉग बाइट्स एंड कैसे डॉग बाइट से केसेस कितने सारे बढ़ गए हैं। और कंज्यूमर फोरम ने ये डायरेक्ट किया था दैट यू कैन नॉट हैव सर्टन ब्रीड्स एज योर पेट्स, एंड ऑल्सो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी अबाउट हैविंग द सेकेंड सॉर्ट ऑफ डॉग एज योर पेट, एंड काफ़ी सारे और भी गाइडलाइंस थे। तो इस ऑर्डर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक तो स्टे किया, सेकेंडली हाईकोर्ट ने कंसर्न्ड अथॉरिटी से एक रिपोर्ट मांगी जिसमें उन्होंने कहा कि यू स्टेट कि हाउ ग्रेव इज द प्रॉब्लम, कि कितने डॉग बाइट्स के कारण डेथ्स हुई है, एंड ऑल्सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टेकन इन ऑर्डर टू मिटिगेट द प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं लीगल प्रोविजंस की। तो देखिए अगर हम लीगल प्रोविजन की बात करें तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन प्रोविजंस, देन वी हैव द इंडियन पीनल कोड व्हिच हैज सर्टेन प्रोविजंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज आर सर्टेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस व्हिच प्रोवाइड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर हम बात करें एनिमल द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी एक्ट ऑफ 1960, ये वो पेरेंट लेजिस्लेशन है जिसके अंडर अब हमारे जो ये रूल्स हैं वो बने हैं, विच इज़ द रूल ऑफ 2023, the title of which is Animal Birth Control Rules of 2023. These rules are going to replace the rules of 2001. तो now let's understand कि Constitution of India में essentially क्या क्या ऐसे provisions है। तो पहले तो there is a directive principle of state policy which is Article 48A। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो endeavor करेगा कि इट प्रोटेक्ट्स एंड इम्प्रूव्स एनवायरमेंट, बट जो स्पेसिफिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। एंड सेकेंडली वी हैव आर्टिकल 51A क्लॉज जी, जो कि ये बात करता है कि हर एक सिटीजन की एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि इट इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ हैविंग कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएशंस और क्रीचर्स। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें तो वहाँ पे ये 2 एंट्रीज है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिनके रिस्पेक्ट में लॉ की जिम्मेदारी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशंस को दी गई है। अब हम आते हैं कि अगर सपोज किसी के पास एक पेट है एज अ डॉग एंड उसके कारण किसी और को प्रॉब्लम हुई, किसी ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर हुआ, तो क्या कोई पीनल सैंक्शन अट्रैक्ट होते हैं? तो द आंसर टू दिस इज सेक्शन 289 ऑफ द आईपीसी, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान नोइंगली एंड नेग्लिजेंटली ओमिट करता है टू टेक सफिशिएंट गार्ड अगेंस्ट एनी प्रोबेबल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और प्रोबेबल डेंजर ऑफ ग्रीवियस हर्ट to any person by virtue of an animal which the person has। तो अगर if I have an animal at my disposal and उस animal की care, उस animal के respect में मुझे एक certain sort of standard of
सिक्योरिटी या गार्ड अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और वो मैंने नहीं करी, उसके कारण किसी ह्यूमन की लाइफ को एंडेंजर हुआ है या उसको ग्रीवस हर्ट कॉज हुआ है, तो देन आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग अ पीनल सैंक्शन अट्रैक्टेड, एंड इसकी पनिशमेंट जो है इट मे रेंज फ्रॉम 6 months or to fine of ₹1,000 or both. So this is the entire legal framework, and now let's dive into the article for today. देखिए, अगर हम रिसेंटली नोटिफाइड रूल्स की बात करें विच इज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ऑफ 2023, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो इसमें एनिमल्स को क्लासिफाई किया इनटू पेट एनिमल्स, ऑफ कोर्स जिनके पास पेट पेरेंट्स होंगे, एंड दूसरा स्ट्रीट या कम्युनिटी एनिमल्स जो कि किसी के द्वारा ओन नहीं करे गए, या फिर अबैंडन्ड पेडिग्री डॉग्स ऑल्सो दे आर इंक्लूडेड हियर, होमलेस एंड दे आर लिविंग ऑन स्ट्रीट्स। सेकेंडली, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी गई है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन। तो अगर तो कोई एनिमल किसी का पेट है तो ऑफ कोर्स द ओनर इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, एंड अदरवाइज लोकल अथॉरिटीज जो है दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ मॉनिटरिंग कमिटी। इस कमिटी का पर्पज बेसिकली क्या होगा, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं इट हैज़ टू ओवरसी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो पा रही है कि नहीं। एंड जो लोकल सिविक बॉडीज है उनकी भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाईलाइट करी गई है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर केयरिंग और फॉर कैप्चरिंग और स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन और रिलीज। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जो डॉग्स हैं उनका कैप्चर कब हो सकता है, उनकी स्टरलाइजेशन इम्यूनाइजेशन का क्या प्रोसीजर होगा, तो 2 पार्ट्स में हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला तो जनरल पर्पस। तो क्या होता है कि अगर किसी एरिया में जैसे डॉग्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका मेनेस जो है वो काफ़ी मतलब हाई पे है, तो वहाँ से कुछ एनिमल्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। एनिमल्स को जनरली डॉग्स को कैप्चर कर सकते हैं, फिर हम उनकी स्टरलाइजेशन करके फिर उनको वापस रिलीज कर दिया जाएगा बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स के तहत, उसी जगह पे फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। एंड सेकेंडली, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स अगर आई है तो एनिमल कंप्लेंट सेल जो होगा वो दैट इज गोइंग टू बी मॉनिटरी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एनिमल कंप्लेंट सेल एस्टैब्लिश करें जिन एट द एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर। दीज आर गोइंग टू बी द सेंटर जहाँ पे कि डॉग्स को लाया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दैट ट्रीटमेंट, एंड अगर रैबीज है या कोई और भी डिजीजेज है तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए, एंड यहाँ पे उनकी स्टरलाइजेशन होगी और यहीं से रिकवर होने के बाद उनको फिर से उन्हीं एरियाज में छोड़ दिया जाएगा जहाँ से उनको लाया जाएगा। तो यहाँ पर इन्हीं सेंटर्स में हम एनिमल कंप्लेंट सेल बनाएंगे। जैसे ही हमारे पास लेट्स से कोई कंप्लेंट आई कोई डॉग बाइट की, तो क्या होगा कि उस वो जो डॉग्स हैं जहाँ से कंप्लेंट आई है हम उनको कैप्चर करेंगे, एंड कैप्चर करने से पहले हम बैनर्स वगैरह लगा देंगे ताकि लोकेलिटी में सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑल्सो हमारा ये एंडेवर रहेगा कि हम सबको एक अवेयरनेस कैंपेन भी फैलाएं, लोगों को कहें कि यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एंड यू हेल्प अस आउट, एंड ऑल्सो एक ह्यूमन मेथड से हम उनको कैप्चर करेंगे। एंड देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर डिटेल्स विच आर स्टेटेड हियर। एंड यहाँ पे फिर देखा जाएगा कि क्या किसी डॉग को कोई सिवियर बीमारी है, अगर यस तो हम उनको बाकी डॉग से सेग्रीगेट कर देंगे। ये बात है जब वो उनको सेंटर्स में ले जाया जाएगा वहाँ पे, और जब तक उनको नॉर्मली तो 2 तरीके के हो गए, जैसे हम डॉग्स को ले गए उन सेंटर्स पे तो पहले तो विल सी इफ दे आर सिक या उनको कोई इनक्योरेबल डिजीज है कि नहीं। इफ यस तो वी टेक देम सेपरेटली, अगर नहीं है तो उनका स्टरलाइजेशन करेंगे, उनको थोड़ा टाइम तक रखेंगे, एंड देन वी गोइंग टू सेंड देम बैक टू द लोकेलिटी जहाँ से उनको लिया गया था। एंड ऑल्सो अगर लेट्स से उनको कोई बीमारी है, कोई इनक्योरेबल डिजीज है, तो उस केस में हम उनकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। वी गोइंग टू कीप देम इन ऑब्जर्वेशन। अगर वो ठीक हो गए तो उनकी स्टरलाइजेशन करके वी गोइंग टू रिलीज देम बैक। एंड लेट्स से अगर वो ठीक नहीं हुए तो हम उस रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो तब हम इन डॉग्स को यूथेनाइज करके वी गोइंग टू किल द डॉग्स एंड वी गोइंग टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। अब ये जो रूल है ये हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट है, विच इज़ अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो आपकी रिस्पेक्ट में क्या 20 जो है ना वो प्रोवाइड करता है फीडिंग ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स। इसमें एसेंशियली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट ओनर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप क्या करो, अपनी लोकेलिटी में एक डेजिग्नेट स्पॉट बना दो कि दिस इज गोइंग टू बी द स्पॉट जहाँ पे एनिमल्स की फीडिंग होगी। और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि दिस प्लेस शुड बी अवे फ्रॉम चिल्ड्रन प्ले एरियाज, या फिर जहाँ पे सीनियर सिटीजन का आना जाना रहता हो वहाँ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आप डेजिग्नेट कर दो कि ये टाइम पर फीडिंग होगी। थर्डली, यू हैव टू इंश्योर कि वहाँ पे वायलेंस ना हो, न्यूसेंस ना क्रिएट हो और वो प्लेस लिटर ना हो। एंड आप वॉलेंटियर भी कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन, कैचिंग एंड रिलीज ऑफ डॉग्स टू असिस्ट दिस एंटायर प्रोग्राम ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल। एंड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके रिस्पेक्ट में कमिटीज बनाने का प्रावधान भी दिया गया है, तो वो इसको रेजोल्यूशन कर ले, एंड उसके रिस्पेक्ट में अपील का प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन मेड। सो विद दिस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज द इशू एट टुडेज
दिस एडिटोरियल। तो देखिए इसका प्रॉब्लम जो हाईलाइट करी गई है ना वो ये है कि सबसे पहले तो अगर हम कुछ डेटा देखें विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके डेटा के अकॉर्डिंग 36% ऑफ वर्ल्ड्स and 65% of Southeast Asia's rabies death they happen in India. And this is also coupled with recent instances जहाँ पे हमने देखा था कि डॉग बाइट्स के कारण 2 भाइयों की डेथ हुई थी, एंड देन देर आर सर्टन इंस्टेंसेस जहाँ पे कि old people they were also killed due to the problem of street dogs. अब इसको एड्रेस करने के लिए जो ये 2023 के रूल्स है, दीज वर रिसेंटली नोटिफाइड, इन्होंने पर्टिनेंटली 3 इश्यूज को एड्रेस किया। एक तो स्ट्रे डॉग्स कैन नॉट बी रीलोकेटेड, दे कैन नॉट बी किल्ड एंड दे मस्ट बी केयर्ड फॉर। तो इसी के रिस्पेक्ट में पूरा ये बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लाया गया है। अब हम देखते हैं कि जो 2001 के जो पुराने रूल्स थे वो क्यों नहीं सक्सीड हो पाए। देखो ऑब्जेक्टिव तो क्या था, दैट यू कैच द डॉग्स, वैक्सीनेट देम, न्यूट्रलाइज देम एंड देन रिलीज देम बैक टू द प्लेसेस जहाँ से उनको लाया गया। बट 2021 के रूल में इट वाज नॉट एबल टू डू सो, बिकॉज क्या होता है कि स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम तभी काम कर पाता है जब आप मैसिव स्केल पे स्टरलाइजेशन कर देते हो, और वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ताकि क्या है कि रिप्रोड्यूस करने का टाइम ना मिले। बट क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही धीरे धीरे फेज मैनर में एग्जीक्यूट हो रहा था 2001 के जो रूल्स में जो प्रोग्राम था, तो इसके कारण इसका पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया। अब जो 2023 के रूल्स हैं उसमें 3 प्रॉब्लम्स ऑथर ने हाईलाइट करी गई है। पहला तो ये जो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हमने दिए हैं फॉर फीडिंग, this is going to further aggravate the problem. Why? Because this is going to increase the problem of dogs homelessness, and thus this is going to make it more susceptible to disease, injury and discomfort. Rather इसके लिए उन्होंने सोल्यूशन के तौर पे ये आर्टिकल में ये प्रपोज करा गया है दैट रूल्स मस्ट प्रोहिबिट द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड द कैजुअल फीडिंग ऑफ डॉग्स ऑल टुगेदर। एंड हमें ये कर देना चाहिए कि वी रिक्वायर पीपल दोज हु वांट टू बी केयर गिवर्स that you adopt the dog and you take sole responsibility of it, more on the lines of what Bombay High Court said. एंड सेकेंडली इसमें जो प्रॉब्लम हाईलाइट करी गई वो ये है कि जैसा हमने देखा कि सिविक बॉडीज या फिर कमिटीज इनकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे तो दी है, बट इनके पास ना फंड्स है सफिशिएंट, ना स्टाफ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है टू केटर टू दिस, तो इन पे काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स। And thirdly, it is stated that without otherwise housing dogs in purpose-built shelters and promoting formal ownership, the 2023 rules, they potentially create more points of failures at the level of local governments and residents' welfare associations while dressing up the cruelty of dog homelessness. And with this, let's dive into the next segment for today, which is the national news segment. The first update is coming from the city of Chennai, which has become one of the top cities in the country for digital payment transactions in the last year. It has emerged as one of the top digital payment transaction cities for the year 2022 as per data released by Worldline India. Apart from Chennai, Bangalore tops the chart. It is followed by New Delhi and Pune. Moving on, this update is with respect to South Asia topping the charts as being home to world's highest number of child brides. So there are 290 million child brides in the region, and it counts for 45% of the global total. This problem, it was aggravated during the COVID-19 lockdowns due to lack of opportunities in education. AU Small Finance Bank, it launches bill payment via video banking. This is going to enable or also help people who have issues with mobility. Moving on, India has become the 6th country globally to begin quantum technology mission. The government of India, it has initiated the launch of quantum mission to nurture and scale up scientific and industrial research and development in quantum technology space. The National Quantum Mission, it was approved at a meeting of the Cabinet Ministry, and India will be following the suit of US, Austria, Finland, France, Canada and China. Moving on to the next update. This is with respect to Premier Handball League signing 2 new franchisees. The Premier Handball League, sanctioned by the South Asian Handball Federation and affiliated with the Asian Handball Federation, it has signed 2 new teams. First is Golden Eagles Uttar Pradesh and second is Garvit Gujarat. This league, it is owned by Blue Spot Entertainment Private Limited. Moving on, this update is with respect to the Malcolm Adi Shesha Award for the year 2023. So this has been conferred on Utsa Patnaik. The award, it is given every year
by the Malcolm and Elizabeth Adisha Trust. It is a prestigious national award which honors the outstanding social scientists' contributions, and it is selected by a national level jury specially constituted for this purpose from the nominations that have been received. As far as the awardee for this year is concerned, she is an economist of national and international repute. And this has brought us to the international segment for today. This is with respect to a new president that has been elected in the country of Cuba. So Cuba's first non-Castro leader, he has again been given the second term as the president, and the name of the person is Miguel Diaz-Canel. He has become the sole candidate to succeed President Raul Castro in a transition aimed at ensuring the country's single-party system outlasts the aging revolutionaries who created it. He's going to be serving the second term as the president. This update is coming from Germany. The former Chancellor Angela Merkel, she receives Germany's highest honor. The Germany's former leader, she has been awarded the country's highest order of merit, despite criticism over her legacy, receiving praise for her discipline and passion during the 16 years as Chancellor. And this has brought us to the last segment for today, which is the legal update segment. Pehli update is coming from the Honorable High Court of Jammu and Kashmir. Essentially, High Court ने इस update में ये held किया है कि अगर कोई person is out on bail, and while the person is out on bail, अगर कोई उन पे FIR register हो जाती है, तो the mere factum of registration of FIR, it does not necessarily mean that the person has violated a condition of bail, and therefore this is not going to furnish a ground for cancellation of bail. देखिए क्या होता है, whenever a person is released on bail, there are certain conditions which are imposed, and one of the conditions usually that is seen is that you're not going to commit another offense while you're out on bail, और अगर ऐसा होता है तो your bail is liable to be cancelled. तो इसी रिस्पेक्ट में हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कोई FIR रजिस्टर हो जाती है तो बाय वर्च्यू ऑफ मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, इट इज नॉट गोइंग टू बी deemed that the person has committed a criminal activity, and this is not going to be deemed to be a violation of the conditions of the bail. And this was held in the case of Janbad Ahmed Das versus Union Territory of Jammu and Kashmir. Now, before we proceed to the next update, I have a question here. ऐसा कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर्स टू रजिस्टर FIR इन अ कॉग्निजेबल केस? जैसे ही आपके पास कॉग्निजेबल केस आता है तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दैट यू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन ऑर्डर टू असर्टेन कि कोई केस मेड आउट हुआ है कि नहीं हुआ है. यू हैव टू स्ट्रेट आउट रजिस्टर एन FIR जैसे ही कॉग्निजेबल केस की कमीशन डिस्क्लोज हो गई है, या जैसे ही आपके पास एक report आ गई है that cognizable case has been committed. Please put down your answer in the comment section. Moving on, this is an update coming from the Honorable Supreme Court. Supreme Court ने हाल ही में ये हेल्ड किया है that for interpreting section 121 of the Punjab Land Revenue Act, analogy can be drawn from Order 20 Rule 18 of the CPC. Essentially, इस पूरे केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि अगर कोई पार्टीशन हो जाती है एंड उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन ड्रॉ नहीं हुआ होता है, विच मीन्स कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई होती है, देयर इज नो लीगल इंस्ट्रूमेंट स्टेटिंग कि पार्टीशन हो गई है. हावेवर हमें ये पता है कि जो जॉइंट स्टेटस था पार्टीज का अब वो अलग अलग हो चुका है, तो देन वी आर गोइंग टू डीम कि हाँ पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है. सो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, that when a revenue officer takes a decision under section 118 of the Punjab Land Revenue Act for the partition of the property, then the same shall stand completed with the joint status of the parties being now severed. Hence, merely because an instrument of partition was not drawn, it cannot be said that the partition was not completed. The name of this particular case is Jabbar Singh, deceased through legal heirs and others, versus Jagtar Singh, son of Darshan Singh. And this has brought us to an end for the TNA. If you want to get access to free study material that we've provided, or the slides which have been used in this TNA, please feel free to join our Telegram channel. For the same, you may scan the barcode here, or you may click on the link which is given in the description. These are the point of contacts in case you want to get in touch with LawSeekho. Also, in case you want to get access to the quiz which is based on yesterday's TNA, please click on the link which is provided for the same purpose in the description of today's video. Put down your answer in the comment section. Thank you for being with us.